ہر اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے، بری تقدیر اللہ کی طرف سے. موبائل پھڑ گئے اللہ کی طرف سے، گھڑی گم گئی اللہ کی طرف سے، چپل گم گئے اللہ کے، اس کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں. ہر اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے، بری. یہ ہے محمد زبیر صاحب جو بنگلور سے جماعت آئی ہے ہماری مسجد میں. 1 منٹ 2 منٹ ریکارڈنگ چالو نہیں ہے نا؟ چالو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. وی آر بیک اگین ود another نیو ویڈیو. آئی ایم یزدان. آج ہم جانے والے ہیں جمعہ کے لیے کھراڑی کی جامع مسجد، جہاں پہ ہمارے مفتی سلطان صاحب ہمیں ملیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ عفان بھائی دانگے چوک سے آ رہے ہیں. یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے، آئی تھنک 30 یا 40 کلومیٹر دور ہے یہاں سے. چلیے لیٹس گو. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا. وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا. سو گائز یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbimiz... آنے دو بس ٹھیک ہے. چلو گائز یہاں پہ گاڑی لگا دی ہے، اور ابھی تھوڑا سا آگے چل کے جانا پڑے گا. آگے وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ اکیلے آئے ہو؟ گاڑی پہ؟ میں اور میری گڈی. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء گائز مفتی صاحب کے کیبن میں جا رہے ہیں ہم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہم مٹھائی لے کے آئے سب کے لیے، اور مفتی صاحب بولے کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا. آپ کو بھی مبارک ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا بلاگ جو ان کے ساتھ بکرے والا نا؟ بکرے والا، پھر ان کے وہ مدرسہ گیا تھا. 15 اگست پلٹن میں ہوا نا آپ کا؟ ہاں فلٹن میں ان کے مدرسہ. مولانا شہباز شاہ نواز کو پہچانتے ہیں؟ ایسا ساتھی ہے ہمارے. مولانا علیم صاحب ابو ہے. ایسا شاہ نواز ہمارے سینئر ہے، مولی شاہ نواز. میری فراغت امام ربانی سے ہوئی. کدھر ہے؟ سجاد نعمانی سے. اچھا نیرل. کیا بات ہے، داخلے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں. ارے وعلیکم السلام بھائی. آپ جانتے ہو ہمیں؟ کیسے جانتے ہو؟ یہ آپ کا بیٹا کون ہے؟ ہاں میرا بیٹا. کیا نام ان کا؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ان کا نام یزدان. آپ کا نام؟ یزدان چاچو. میرا شکر ہے چاچو بولے. عبداللہ بھائی انکل بولتے میرے کو. یزدان. میرا نام ہے نا محمد مفتی سلطان شیخ. اچھا محمد ہے ان کا نام. اوکے صرف محمد. نام کے اچھا ایک اور محمد ملا ہے ہمیں. نام میں جو ہے نا انسان بہت یہاں غلطی کرتے ہیں. ابھی آج کے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، بڑے بڑے نام رکھتے ہیں. محمد عادل، محمد شاکر، محمد سہیل، ایسا نام رکھتے ہیں. کارڈ کے اندر کاغذات میں بعد میں بہت پرابلم آ جاتی ہے. بہت زیادہ پرابلم. سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ محمد نام الگ ہے، سہیل نام الگ ہے، عادل نام الگ ہے. پھر وہ پاسپورٹ کے ٹائم پہ پریشانی ہوتی ہے. صحابہ کی زندگی جب اٹھا کے دیکھتے تو کسی صحابی کے آگے آپ کو محمد ابو بکر صدیق کبھی پڑھے آپ نے؟ نہیں. محمد عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حالانکہ اللہ کے رسول کی زندگی ان کے لیے دنیا اور آخرت سے ماں باپ سے بھی زیادہ بہتر تھی. ساری زندگی انہی سے جڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے نام کے آگے انہوں نے ابو بکر. ان کا ایک ہی لقب کافی تھا، رضی اللہ عنہ. صحیح بات ہے.
लड़के, परवेज भाई के भतीजे हैं ये, अच्छा ओके ओके और ये मुबीन भाई के लड़के हम्माद ओके, इन दोनों का नाम? साद, ये मोहम्मद साद। बोलो तुम अपना नाम बोलो हम्मद पूरा। ए, क्या बात है, माशाल्लाह यार, तुम्हारी टोपी मस्त है। क्या बोलना? के आइला है पहन के आयला है, आयला है, पूना की जबान खाइला है। आयला है, कुडून आयला है। अरे मेरी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप बेजा सवाल से बचो वरना हलाक हो जाओगे जैसे कि बनी इसराइल हलाक हो गए। कुछ भी सवाल करते हैं, ज़्यादा सवाल भी जो रहते ना, बेजा सवाल भी इंसान को जो है ना तंगी में मुब्तला कर देते। करेक्ट। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक वाक़या पेश आया। एक आदमी को एक कौम ने कत्ल करके बीच, यानी इस बस्ती वाले के इस बस्ती वाले के झगड़े थे, तो इस बस्ती वालों ने एक आदमी को कत्ल करके इस बस्ती में ले जाकर फेंक दिया। तो सुबह हो गई तब वो लाश तो जिस बस्ती में मिले उस बस्ती वालों पर इल्ज़ाम आएगा। जी जी लेकिन वो बस्ती वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि हमने कत्ल नहीं किया है, सबूत क्या पेश करें। सही। अल्लाह के सामने गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से कहो कि हमारे लिए कुछ बरात का इंतज़ाम करें। करेक्ट। तो कुरान करीम की आयत के अंदर पूरी वजाहत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया ये गाय लो और उसको ज़बह कर और उसका ज़बान का हिस्सा इसके लाश को लगा दो, ये बोलेगा कि मुझे किसी ने कत्ल किया। हाँ हाँ मसला कितना था, गाय लो ज़बह कर दो, बात बन जाती थी। सही बात है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ने कहा है कि गाय को ज़बह करो और उसका हिस्सा गोश्त का इसके जिस्म को लगा दो, ये बोलेगा। सही। अब ये सवाल, गाय कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए कि गोरी होनी चाहिए, बोल दिए कि ऐसी कलर की हो, चितकबरे कलर की हो, सब बता दिए। हाँ नहीं, फिर जब सवाल आया तो अभी कैद आई। करेक्ट करेक्ट। ये सवाल करने से पहले तुम जो भी गाय ज़बह करते थे काम हो जाता था। हो जाता था। अब तुमने सवाल करने की वजह से पाबंदी आ गई कि तुमको ऐसी ही गाय ज़बह करनी पड़ी, अभी वही लानी पड़ेगी। वही लानी पड़ेगी। अब फिर जब वो आई तो नहीं, उसकी कैफियत कैसी हो, मतलब हल चलाई भी होनी चाहिए कि बगैर हल चलाई होनी चाहिए। तो फिर पाबंदी आई कि ऐसी गाय होनी चाहिए जिसने कभी खेत में काम ना किया हो, फ्रेश। अब पहले आसान था ना, बेजा सवाल करना, बोल दिया ना, और सामने वाले को बोलते हैं ना कि भाई सूरह फातिहा पढ़ लो इंशाल्लाह हो जाएगा। कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है? अच्छा, उनको बोले फजर के बाद पढ़ो। कितनी मरतबा पढ़ना है? 3 मरतबा पढ़ना है, 6 बार? अरे 1 मरतबा पढ़ लिया हो जाता था काम। वो तेरे सवाल की वजह से अब सामने वाला भी क्या कर रहा है, ठीक है चल 3 मरतबा पढ़, अब तुझ पर पाबंदी आ गई। सदका कर दो, 10 रुपए से भी काम कल चल जाता था, कितने करो, 100 करोगे, 200 करो, 1000 कर दो। तेरे सवाल करने की वजह से क्या हो गया, पाबंदी आ गई। तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेजा सवाल से बचो वरना हलाक हो जाओगे जैसे कि बनी इसराइल हलाक हो। सहाबा करम सहम गए। अब वो सहम इसलिए गए, कोई सवाल ही नहीं कर रहे, ज़रूरी जो सवाल है वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि भाई अभी मैं जो सवाल करूँगा हो सकता है कि मेरी नज़र में तो बजा हो लेकिन अल्लाह के रसूल की नज़र में वो बेजा हो, गैर ज़रूरी हो, तो मुझ पर कुछ ना इताब आ जाए, कुछ वईद की आयत नाजिल हो जाए, मुझ पर आज़ाब ना आ जाए। तो इसलिए सहाबा इकराम खामोश हो गए। लेकिन अभी खामोशी भी तो इल्म से महरूमी का ज़रिया बनती है। जी जी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान की शक्ल में, अभी जो खुतबा जो पढ़ा पहला फर्स्ट हदीस है जिब्राइल उसका नाम, ओके, मिशका शरीफ की पहली हदीस है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये हज़रत उमर फ़ारूक की रिवायत है, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में आया, बाल बिल्कुल काले, साफ़ सुथरा लिबास, और आकर अल्लाह के रसूल के घुटने को घुटना लगा कर बैठ गया। यानी अगर हम उसको जानते जी तो कोई ना कोई तो पहचान लेता ना, सही बात, इधर ही का होना चाहिए था, तो कोई भी उसको पहचान नहीं रहा, गोया कि वो यहाँ का नहीं है। तो अगर यूँ मान ले यहाँ का नहीं है तो बाहर से आया होगा, अगर बाहर से आता तो पहले ज़माने का सफ़र कैसा होता था, सही बात है, इस कोड़ा में तो नहीं आते थे। पहले ज़माने को बीच बीच में रोस्ट करते हो तो कै में आते थे, ऊँट पर आ रहे, घोड़े पे आ रहे, और अपने डामर के जो पक्के रोड बने हुए हैं वैसे रोड तो नहीं होते थे, जी, मिट्टी का रोड होते थे, रेगिस्तानी इलाका होता था। तो वहाँ से जब गुजर के आ रहे तो जाहिर सी बात है बालों के अंदर धूल होनी चाहिए, कपड़े मैले होने चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ का मानते तो यहाँ का होता तो सब पहचानते, कोई नहीं पहचान रहा, कोई नहीं, चलो यहाँ का नहीं, मुसाफिर है तो मुसाफिर की निशानी भी तो नज़र नहीं आ रही, जी जी, बाल पे धूल, कपड़े पे मिट्टी वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम हैरान हैं, आए और आकर घुटने से घुटना लगाकर बैठ गए।
इतने करीब हम भी नहीं गए करीब, अल्लाह के रसूल के बिल्कुल घुटने को घुटना लगा कर बैठ गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं मुझे बताइए। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलात व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। तो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना है 5 वक्त की, रोज़ा रखना है महीने साल के अंदर, जब रमज़ान का महीना आ जाए पूरे महीने के रोज़े रखना है। ज़कात अगर फ़र्ज़ हो गई तो ज़कात देना है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करना है। ये 5 चीज़ों के मजमूए का नाम इस्लाम है। अब सामने से जवाब क्या आ रहा है, सदक़त, आपने बिल्कुल सच कहा। अभी आप मुझे एक सवाल करें और मैं कहूँ कि भाई इसका ये जवाब है, तो आप क्या कहोगे? जज़ाकल्लाह कहोगे? आप यह कहोगे कि हाँ आपने ठीक कहा। अगर आपने ये कहा कि ठीक कहा तो इसका मतलब है कि आपको इसका जवाब पहले से मालूम है ना। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, जब उस शख्स ने क़ाल सदक़त कहा कि आपने सच फरमाया, तो हम शौक हो गए कि यार सवाल करा, सवाल करना इस बात की अलामत है कि उसको मालूम नहीं है, और जवाब मिलने के बाद कह रहा है कि आपने सच कहा, ये इस बात की अलामत है कि इस सवाल का जवाब इसको पहले से मालूम था। यानी हैरान कुन बातें पेश आ रही है। फिर दूसरा सवाल किए, अखबिरनी अनिल ईमान, ए नबी जी आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तबारक व तआला वल बाक़ी बादल मौत। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल तक। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल को मानते हैं, सारे रसूलों का और नबियों का इनकार करते हैं। सारे नबियों को मानते हैं, इताअत एक नबी की करेंगे, मानेंगे सारे नबियों को, लेकिन इताअत हमारे सिर्फ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह रसूलों को मान, अल्लाह के रसूलों को मानना, अल्लाह की भेजी हुई किताबों को मानना सारी किताबों को। तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजिल भी अल्लाह की किताब, कुरान भी अल्लाह की किताब, लेकिन इताअत किसकी होंगी? कुरान की, सिर्फ कुरान करीम की। तो अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान लाना, और इसी तरह हर अच्छी तकदीर पर और हर बुरी तकदीर पर, दोनों किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से, दोनों अल्लाह की तरफ से। अच्छा, मतलब कोई भी, मतलब इंसान के साथ जो हादसे होते हैं या बुरा अच्छा होता है या बुरा होता है, बाद लोग क्या होता है, अच्छे के क्रेडिट इंसान अपनी तरफ लेता है, कभी कभी मेरे वजह से हो गया, फला की वजह से हो गया, या बाज़ लोग ऐसा रहता है कि जो अच्छी चीज़ है वो अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, जो बुरी चीज़ है वो शैतान की तरफ मंसूब करते हैं। शैतान की वजह से जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। नेक फाली, इससे एक चीज़ और भी समझ में आती है कि नेक फाली लेना जायज़ है, बद फाली लेना जायज़ नहीं। तेरा मुंह देखा करके आज क्या हो गया, पूरा दिन खराब हो गया, हाँ ये बहुत करते हैं। तो ये बदफाली है। ये बिल्ली सामने से गई तो हाय रुक जाएंगे, भाई क्यों रुका है, बोले वो बिल्ली गई ना सामने से और बिल्ली के जाने से तेरा क्या लेना देना। तो ये बदफाली है, किसी से कुछ नहीं होता, बिल्ली के जाने से कुछ नहीं होता। बिल्ली में क्या औकात है कि जो तुम्हारी तकदीर बदल दे। सही बात है, होता है ना। ये रात में भी करते हैं लोग, बदन पे कपड़ा सीना मनहूस है, ये भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसके पहले वाली मजलिस में कहा था कि बदन पे कपड़ा, जो फटा हुआ कपड़ा जो सीते है, इसको कहते हैं हुक्म इरशादी, यानी हमारी भलाई के लिए हुक्म दिया गया है, वरना ये हुक्म शरई नहीं है। कि अगर तुम बदन पे रहते हुए कपड़े को सीएंगे तो चुभने का और लगने का अंदेशा है। टूटे हुए गिलास में पानी ना पियो, ये हराम और नाजायज का मसला नहीं है, ये हुक्म फायदे के लिए है कि अगर तुम पियोगे हो सकता है होठ को लग जाए, भलाई वाला हुक्म दिया गया। तो इसी तरह हर अच्छी तकदीर और हर अच्छी बुरी तकदीर किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ से। बच्चा मर गया, बाप मर गया, घर में हादसात हो गया, कुछ भी हो गए, अल्लाह की तरफ से। ये वाला अगर मिजाज, ये वाला ईमान अगर इंसान के दिल में रहा ना, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसको हिला नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना लोगों को नहीं पता है, और इंसान इसकी वजह से बहक जाता, बहुत सारे इंसान डगमगा जाते हैं। और इतने हादसात, अब ऐसे किस्से भी मिलते हैं हमको तारीख के अंदर कि जिनके ऊपर ऐसे ऐसे हादसात है। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा 4 बेटे को जंग में भेज रही है और कह रही है कि पीठ फेर कर मत आना, वरना कल क़यामत के दिन गिरबान पकड़ूगी। चारों बेटे शहीद हो गए। शहादत की बच्चों की खबर जब आई है तो क्या ज़बान पे जुमला निकला? अलिहाजा अर्ज़अतुहु, इसी वजह से तो मैंने इनको दूध पिलाया है, इसी दिन को दिखाने के लिए तो मैंने अल्लाह इन बच्चों को दूध पिलाया है। अब कल क़यामत के दिन मेरा सीना चौड़ा होगा और फ़ख्र करूंगी कि मैंने अल्लाह के नाम पर 4 बेटों को शहीद कर कर आई। तो ये अल्लाह के लिए था, सब कुछ किसके लिए? हर अच्छी तकदीर अल्लाह की तरफ से, बुरी तकदीर तो इंसान का गम कम हो जाता है।
इसीलिए वो कहते हैं ना, एक साहबिया है, बच्ची का इंतकाल हो गया, तो साहबा ने उनको कहा, अल्लाह के रसूल आए हुए थे, उनको समझा रहे, बहुत ज़्यादा वावेला कर रहे, बहुत ज़्यादा नुहा कर रहे, चीख रहे, गम माँ के लिए बेटे के मौत का गम कितना होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो सदमे में थे, वो समझ ही नहीं पाई। बाद में गम हल्का हो गया, और गम हल्का हो ही जाता है, इंसान की फितरत है, अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है। कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, बेटा भी बाप को जब दफनाता है ना, तो कब्रिस्तान से मैंने ऐसा सुना है अपने कानों से, बेटा बोलता है, भाई वो पुलाव का ऑर्डर दिया था, क्या हो गया, मेहमान आए हैं, उसको बोलना उसके अंदर गोश्त मत डाल, वेज पुलाव बना। कहाँ खड़ा है, कब्रिस्तान में, बाप को अभी दफनाया है, फोन करके बोलता है मेहमान आए हैं, उसको बोल ज़्यादा देर मत कर और उसके अंदर गोश्त मत डालने वेज पुलाव बनाने। तो ये इंसान के अल्लाह ने बनाया है। अगर मरने वाले का गम अगर हमारे सीने में हमेशा ताज़ा रहे तो इंसान तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, जी नहीं सकता। ये गम हल्का हो ही जाता। बाद में वो सहाबिया को बताया गया कि अल्लाह के रसूल आए थे, आपको समझा रहे थे, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे, तुमको एहसास हो गया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं सब्र करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्न सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो पहले सदमे के वक्त होता है, यानी जिस वक्त सदमा हुआ उसी वक्त सब्र की जो फजीलत है, सब्र का जो सवाब है ना, उसका सवाब उसी वक्त होगा सब्र करने पर। बाद में तो तुमको सब्र करना ही है, वो तो अपने आप हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और नहीं करके करेंगे क्या, उसको कब्र में से थोड़ी बाहर के लेकर आएंगे, आपको चुप करके सब्र करना ही है। तो हर अच्छी तकदीर अल्लाह की तरफ से, बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से। मोबाइल फोड़ गए अल्लाह की तरफ से, घड़ी गुम गई अल्लाह की तरफ से, चप्पल गुम गई अल्लाह के, इसको उसको कोसने से कुछ होने वाला नहीं। हर अच्छी तकदीर अल्लाह की तरफ से, बुरी। इसी तरह मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर, इस पर भी ईमान लाना है, इसका नाम ईमान है। इन चीज़ों पर क्या करना है, ईमान लाना है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, अखबिरनी अनिल इहसान। वो इंसानी शक्ल में आए थे, घुटने से घुटना लगाकर, अल्लाह के रसूल बताइए कि एहसान किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसी कर कि तू अपने आंखों से अल्लाह को देख रहा है। ऐसा तसव्वुर, कोई भी इबादत, ये नहीं कि सिर्फ नमाज, रोज़ा भी, ज़कात भी, हज भी, और इसी तरह सदक़ात और खैरात भी, गरीबों की मदद भी, जो भी इबादत कर रहा है वो ऐसी इबादत कर कि तू किसको देख रहा है, अल्लाह को देख। हाँ, अगर ये तसव्वुर नहीं आ रहा है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो इतना तो कम से कम तसव्वुर होना ही चाहिए कि अल्लाह तुझे देख रहा है। ये अगर इंसान की सोच होंगी तो नमाज में मज़ा आएगा, नमाज में ध्यान लगेगा, भाई अल्लाह देख रहा है। जैसे किसी बादशाह के सामने, अभी बादशाह वाली मिसाल जो है इतनी पुरानी है कि बादशाह वाला दौर हमने देखा नहीं, इसलिए हमको वो चीज़ समझ में नहीं आती जी। लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया, हालात देखे कि अगर हम किसी बड़े के सामने भी जब खड़े होते तो अदब से खड़े होते, सही बात है, वो देख रहा है, क्योंकि उसके देखने का यकीन है, उससे कई गुना वो गाफिल हो सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें अल्लाह के देखने का यकीन है कि अल्लाह अर्श पर बैठे बैठे हमको देख रहा है। बल्कि वो हमारे जाहिर को तो क्या, हमारे बातिन के दिल के अंदर जो ख्यालात उठ रहे हैं ना, अल्लाह उसको भी सुनता है और उसको भी देखता है। वो जानता है ये क्या सोच रहा, अभी मुझे कहाँ जाना है, अभी मुझे कौन से होटल में जाना है, और किसको मिलना है, और वो सारी चीज़ें नहीं कि अभी घूमने जाना है, ये चीज़ खरीदना है, मार्केट में इसके पास से ये लेना है, उसको वो लेना है, वो सारी ख्यालात उसके इंसान के दिल में, दिमाग में घूमते। एक इमाम साहब ने असर की 3 रकात पढ़ा के सलाम फेर दिए, असर की 3 रकात नमाज पे सलाम फेर दिए, 6 गोया हो गई, कोई कह रहा 4 हो गए, कोई कह रहा 3 हो गए। एक बंदा खड़ा हो गया, बोले 3 ही हो गए, तो नहीं बोले 4 हो गए, नहीं 3 ही हो गए। बोले आपको कैसे पता? बोले मेरी 4 दुकानें हैं, मैं हर रकात में 1 दुकान का हिसाब करता हूँ, तो 3 ही दुकान का हिसाब हो गया। बोले अभी एक का बाकी है, एक का अभी बाकी है, तो इसीलिए 3 ही हो गए। तो नमाजों का यह हाल है हमारा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि एहसान किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तो पक्की बातें देख रहा है, ये तसव्वुर होगा तो इबादत में मज़ा भी आएगा, ध्यान भी लगेगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि नमाज में दिल लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये करो, तसव्वुर करो बाकायदा, बार बार शैतान आएगा और कचूके लगाएगा, इंसान को डंग मारेगा कि भाई उस्कुर कज़ा, उस्कुर हदीस पाक में है ना, जैसे ही नियत बांधता है शैतान आता है और उसको उसके दिल पर डंग मारता है, उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, ये चीज़ याद कर, वो चीज़ याद कर। जो चीज़ें भुला हुआ होता है ना इंसान, नमाज पढ़ने की जैसी नियत बांधने का फौरन याद आ जाती है। ये बात हज़रत इमाम अबू हनीफा के बाद एक शख्स आया और कहने लगा कि हज़रत मेरी फुला चीज़ गुम गई है, मिल नहीं रही। हज़रत ने कहा मस्जिद में जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ लो, याद आ जाएगा। वो बंदा गया,
और जैसे ही नियत बांधा पहली रकात में याद आ गया, नमाज तोड़ के चला गया, वो कहा जो चीज़ याद आ गई ना उसको, जो चीज़ भूल गया था तो वो मिल गया। हजरत के पास आकर कहा हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। बोले मैं पहली रकात में चला गया। हजरत ने कहा अरे पागल 2 रकात तो पूरी कर लेता। तो इबादत ऐसी करो कि अल्लाह देख रहा है। सही बात है। चौथा सवाल, अखबिरनी अनिस्सा, ए नबी जी आप बताइए कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मल मसऊल अनहा बिअअलम मिन अस्साइल, सवाल करने वाले से ज़्यादा जवाब देने वाला नहीं जानता, जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी तू नहीं जानता, सिर्फ मैं नहीं जानता नहीं, तू भी नहीं जानता। क्या ताबीर अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई कि मल मसऊल अनहा, ऐसा भी कह सकते थे ला अदरी, ला अदरी का माना मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मुझे नहीं मालूम से एक बात निकल के आती है कि हो सकता है कि इसे मालूम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जवाब देने वाले को नहीं मालूम तो सवाल करने वाले को भी नहीं मालूम, चाहे वो फरिश्तों का सरदार क्यों ना हो। इसका इल्म सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास, सिर्फ अल्लाह के पास। क़यामत का कुरान करीम में 21वें पारे के अंदर खुतबे की इस हदीस के बाद जो आयत मैंने पढ़ी उस यही आयत पढ़ी कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह ही के पास इल्म है कि क़यामत कब आएगी। सही बात है। लोग बताते ये अब आएंगे तब आएंगे, अल्लाह के रसूल ने जो है ना तारीख नहीं बताई है, वरना अलामतें और जो निशानियां हैं कि जब मेरी उम्मत ये निशानियां देखे तो समझ जाए कि क़यामत करीब है। करीब है, अभी वो कितनी करीब है हाँ वो वो नहीं पता। मालूम। वरना अल्लाह के रसूल ने तो एक मरतबा फरमाया अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत मेरे इस 2 उंगलियों की तरह है। यानी इतना पास है। ये मैं और ये क़यामत, जिस तरह से इस उंगली के बाद इस उंगली के आने में बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, फौरन क़यामत है, तो इसी तरह मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, सीधा क्या आएंगी? कयामत क़यामत आएगी। बाद मुहद्दिसीन ने इसकी ये तशरीह की है जिस तरह से इस और इस उंगली के बीच में कितना फासला है, थोड़ा ऐसे अल्लाह के रसूल और क़यामत के बीच में इतना ही फासला रहेगा। अल्लाह के रसूल ने एक रिवायत में बयान फरमाया कि असल दुनिया का वक्त तो गुजर गया, अब तलछड़ बाकी है। तलछड़ है खाना खत्म होने के बाद खुरचन रहता है, खुरचन जैसे आवाज़ आए तो क्या बोलते हैं हम, हमारे ज़बान पे क्या जुमला होता है, ओ भाई खाना ख़त्म हो गया हाथ को रोक लो। तो खाना ख़त्म हो गया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया ख़त्म हो गई, अब जितना वक्त बाकी ये तलछट है। फिर भी इंसान ऐसा बिल्कुल मुतमईन और मौज मार रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे नहीं मालूम, यानी मुझे नहीं मालूम तुझे भी नहीं मालूम। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल को बदल दिया, सवाल का अंदाज़ बदल दिया। ठीक है अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएंगे नहीं मालूम, अखबिरनी अन अमाराती है, उसकी निशानियाँ बताओ, उसकी अलामत बताओ। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अन तलीदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफातल उरातल आलत रियाअशा यततावलून फिल बुनियान, यानी जब तुम देखोगे कि माएँ अपने आकाओं को जन्म देंगी, किसको जन्म देंगी? आकाओं को। यानी मुहद्दिसीन ने इसका मतलब निकाला है जब औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगेंगी। ओके ओके ओके। और इसी तरह तुम देखोगे कि नंगे बदन नंगे पैर बकरियां चराने वाले ऊंचे ऊंचे महलों में रहने के ख्वाब देखेंगे। और ये चीज हम देख रहे हैं, हैं। फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं वहाँ के लोग, देहात के लोग। रोड जा रही है गवर्नमेंट के रास्ते में तो उनको माशाल्लाह 10 करोड़ 20 करोड़ के अमाउंट मिलती है। हजरत घर में खाने को नहीं है लेकिन बाहर जाके क्या करता है, फॉर्चूनर लेकर आता है। देहातियों के अंदर मैंने देखा है, गाँव देहात के अंदर वाक़, और बड़े बड़े बंगले देहातों के, पहले झोपड़े में रहते थे और आज उन लोग के घर शहरों से, शहरी वालों से भी अच्छे हैं। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बयान फरमाया कि बगैर चप्पल के चलने वाला बकरियां चराने वाला है, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे महलों में ऊंचे ऊंचे इमारतों में रहने के ख्वाब देखेंगे। सही बात है। आज देखे माँ बाप औलाद की कितनी नाफरमानी कर रही है, बहुत ज़्यादा। नहीं औलाद अपने माँ बाप की कितनी नाफरमानी कर रही है। औलाद माँ बाप को बाकायदा गालियाँ दे रही है, हाँ। उल्टा बोल रही है, आंसू बहा रही है। अगर ये दुनिया जजा और सज़ा की दुनिया होती ना, अल्लाह की कसम माँ बाप के नाफरमानी पर इसी वक्त आज़ाब आ जाता। लेकिन ये दुनिया जजा सज़ा की दुनिया नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों ने लिखा है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका वबाल दुनिया ही में आएगा, बाकी जितने उल्टे पुल्टे काम करेंगे उसका बाद में हिसाब होगा, क़यामत के दिन हिसाब होगा। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका हिसाब यही देना होगा, यानी यहाँ भी देना होगा वहाँ भी देना होगा। जी जी। एक मस्जिद, अल्लाह के घर की बेहुरमती अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। मतलब मस्जिद के अंदर बेहुरमती हो, दुनिया की बातचीत हो, गालिम गलोच हो, झगड़ा हो, नाच गाना हो, उसके अंदर म्यूजिक वगैरह बजाना हो, ये सारी चीज़ें, ये मस्जिद के बेहुरमती वाले जितनी चीज़ें। इसके अंदर एक और चीज़ है, मस्जिद के होते हुए मस्जिद में ना आना। ओके, ये भी एक बेहुरमती में दाखिल है। सही बात है। तुमने घर में शादी रखी और मैं बुलाने के बाद मैं नहीं आया, तुमको कैसा लगेगा? अल्लाह बुला रहे, दिन में 5 दफ़ा बुला रहे। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ने घर इबादत के लिए बनाया है,
तो आना चाहिए ना। जैसे आपने आजू बाजू का बोला था। जी जी बिल्कुल। तो मस्जिद के अंदर मस्जिद को नमाज के लिए ना आना ये भी मस्जिद की बेहुरमती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर पे कुरान करीम की बेहुरमती, कुरान की बेअदबी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये है कि कुरान को नीचे रखना, कुरान को पढ़ना ही नहीं, पढ़ने आता है फिर भी पढ़ना नहीं। साल में एक दफ़ा रमज़ान जब आएगा तब खोलेंगे, धूल लगा हुआ है मोबाइल पे, धूल एक दिन बर्दाश्त नहीं होता, उसको क्लीन करते, थोड़ा सा स्क्रैच आ गए तो फ़ौरन उसका ग्लास बदल के लेकर आते, कवर पे कवर लगाते। तो वो कुरान ऐसा घर में ताकों में लगा हुआ है, अलमारी में लगा हुआ है, धूल लग रही है उस पर, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं, उसको साफ़ करने को तैयार नहीं। रमज़ान आएगा तब निकलेगा, ये भी उसके साथ बेहुरमती है। इसी तरह कुरान को सीखने की कोशिश ही न करना। बहुत सारे मसाजिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के इमाम साहब जो है बड़ों को भी पढ़ाते हैं, तो जाए ना, जाए उनके पास, उनको रिक्वेस्ट करे कि हमको सिखाए कुरान करीम। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने कुरान को उतारा है आसान है, पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, याद करने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। जब अल्लाह कह रहा है आसान है तो जाहिर पक्की बात है आसान है। और यही तो एक किताब है कि 7 साल का बच्चा भी अपने सीने में महफूज रखता है। कितनी बड़ी बात। दुनिया की कोई किताब बताओ ऐसी है, लफ्ज़ टू लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, नुक्ता ब नुक्ता, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक एक हर्फ भी इधर उधर ना हो, और पूरी की पूरी किताब उसके ज़हन में, उसके सीने के अंदर महफूज हो। इसके अलावा कोई और किताब बता दो? कोई भी नहीं। और भी इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी की 6666 आयत है उसके अंदर, 30 पारे है, 114 सूरतें हैं उसके अंदर। कितनी बड़ी किताब। ये कुरान की बेहुरमती, इसका वबाल अल्लाह दुनिया ही में भेज दे। ये दोनों चीज़ें जो आपने बोली हैं, ये दोनों चीज़ें जितने भी लोग देख भी रहे हैं या फिर जो भी हैं। तीसरी और एक चीज़ है माँ बाप। तीसरी है माँ बाप। माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप की बेहुरमती, माँ बाप की बेअदबी, माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप के आँख से आंसू बहाना, माँ बाप को रुला देना, माँ बाप को तू तड़ाक से बात कर देना, 4 लोगों में माँ बाप को जलील कर देना, ये वो चीज़ें हैं जो जिसका वबाल इंसान क्या कर देता है, दुनिया ही में पाल लेता है। एक कहानी है, क्या बोलते हैं उसको, दोहराई जाएंगी। क्या है कहानी है, दोहराई जाएंगी। जी जी, तुमने अगर अपने माँ बाप के साथ जो रवैया इख्तियार किया है, तुम्हारी औलाद वही कहानी तुम्हारे साथ दोहराएंगी। सही बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। न माने तो करके दे, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख, मरेगा मालूम पड़ेगा जन्नत भी है जहन्नम भी है। समझ में आया? एक बेटा अपने बाप को मारते हुए गली के एक चौराहे पर लाया। बाप ने कहा, चौराहे तक लाने तक खामोश रहा, जब जिस जगह पे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया तो उस बाप ने बेटे से कहा कि अब इसके आगे मुझे मत ले जाना। बेटे ने कहा क्यों? कहा कि मैंने भी मेरे बाप को मारते हुए यही तक लाया था। अरे अरे अरे, मैंने भी। तो ये कहानी है, दोहराई जाए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारे पैर धोए, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारी इज्जत करे, तुमको एहतराम से अपने कंधों और सरों पर बिठाए, तो तुम्हें भी चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ वही रवैया है। चाहे माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो, इस्लाम कहता है कि उसके साथ एहतराम का मामला हो। बहुत बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मामला। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका वबाल दुनिया में आता है। तो अल्लाह के रसूल ने निशानियाँ बयान फरमाई कि माँ बाप की नाफरमानी होने लगे, नंगे बदन नंगे पैर चलने वाला, बकरियाँ चराने वाला, ऊंचे ऊंचे महलों में ख्वाब देखे। ये हो गया, सवाल करके चले गए हजरत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए उमर, तुम्हें मालूम है ये कौन है? मनी साइल, कौन सवाल करने वाला मालूम? हजरत उमर ने फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जानता है, मैं नहीं जानता। यहाँ से एक अदब भी मिलता है, जब नहीं मालूम है तो चुपचाप बैठने का, जबरदस्ती का हाकने का नहीं क्या, हाँ हो सकता है ये है, हाँ हो सकता है वो है, नहीं मालूम है सीधा बोल दो, डायरेक्ट बोलो। तो हजरत उमर ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, अल्लाह उसका रसूल जानता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जिब्राइल थे, आपको दीन सिखाने आए थे। क्या सिखाने आए थे? दीन सिखाने आए थे। तो सहाबा के लिए दरवाज़ा खुल गया। बड़े बड़े जो ज़रूरी मसाइल थे, जो ज़रूरी बातें थी दीन की, इस्लाम की, वो बातें सबके सामने आ गई खुल के। ये इसका पस मंज़र ये है कि उस वक्त में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में आना पड़ा। सहाबा बिल्कुल खामोशी हो गए ना। फिर बताया गया कि भाई जो ज़रूरी सवाल है वो कर सकते हैं, बेजा सवाल ना करें। सही बात है, माशाअल्लाह। इसका नाम है हदीस, हदीसों के नाम है हदीस जिब्राइल। हाँ, हदीस किरतास, हदीस जिब्राइल। तो ये जिस टॉपिक पे, जिस वजह से हदीस बयान की गई, हदीस पेश आई, तो उस वजह को नाम देकर कहा गया है ये हदीस जिब्राइल है। सही बात है। तो इस हदीस का नाम क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आने की वजह से इसका नाम गिर गया हदीस जिब्राइल। बड़ी लंबी है, बहुत तफसील है। मदारिस के अंदर इसको महीनों पढ़ाते, एक एक जुमले पर कई कई दिनों तक बहसें होती है।
اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بٹ ابھی دیکھیں گے اگر مسلمانوں کا حال زیادہ تر سب جگہ پہ مسلمان کتنے زیادہ پریشان ہیں. ابھی آپ نے جو یہ 3 چیزیں بتائی نافرمانی والی، جس کا بوال مطلب جس کا جو وبال اور تینوں چیزوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. مسلمان ہی کر رہے ہیں نا. مسجدیں بالکل خالی، قرآن بالکل پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی. جگہ جگہ پہ ماں باپ کے، ہر ایک گھر کے بعد دوسرا گھر ماں باپ ڈر رہے بچوں سے بات کرنے کے لیے. ماں باپ، میں تو کہتا ہوں اس گھر پہ اللہ کی لعنت ہے جس گھر کے اندر ماں باپ کو بچوں سے بات کرنے کے لیے ڈر ڈر کے بات کرنا پڑتا ہو. صحیح بات ہے. نہیں تو بولوں گا تو بچہ چیخے گا، چلائے گا، 4 لوگوں میں مجھے ذلیل کرے گا. اس لیے ماں باپ خاموش رہتے ہیں. فریڈم دو یار ماں باپ کو. جس ماں باپ نے اپنی پوری جوانی اپنے خواہشات، بچوں کی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا دی ہو، تم اس کو اتنی آزادی نہیں دے سکتے کہ وہ 4 لوگوں میں ہمارا گریبان پکڑے تو اس کو اتنا یقین ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. صحیح بات ہے. مطلب میں بھی ایک انسان کی پہچان اسی پہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی کیسے ریسپیکٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں جیسے میں لوگوں کے ساتھ گھومتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں. جیسے یہ عفان بھائی ہے، ابھی یہ اپنے ڈیڈ، ان کے جو فادر ہیں، ان کی کیسے ان کی ریسپیکٹ کرتے، کیسے ان سے ڈرتے بھی ہیں. تو وہ چیز. پھر اس کے بعد عامر بھائی ہیں، وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، وہ اپنے پپا کے سامنے ڈائریکٹ. ماں باپ سے ڈرنا یہ بزدلی نہیں ہے، ماں باپ سے ڈرنا یہ احترام. اور پھر عبداللہ بھائی آپ ان کو جانتے ہی ہو. اگر بھرے مجمع میں باپ نے اگر ڈانٹا اور مارا بھی تو تم بول سکتے ہیں کہ یہ صرف باپ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. کسی کے باپ میں مجال نہیں ہے کہ جو مجھے ڈانٹے. صحیح بات ہے. تو وہی ایک چیز بہت اچھی ہے. مطلب اور یہ چیز یہ وہ نعمت ہے نا، ماں باپ اگر گئے نا تو ان کو ملنے کے لیے آپ کو قبرستان جانا پڑے گا. ساری دنیا میں یہ نعمت کا بدل نہیں ملے گا آپ کو. نہیں ملے گا. صحیح بات. وہ جذبہ، وہ ممتا، وہ دعائیں، راتوں کو سسکنا اولاد کے لیے، وہ آپ کو ان دونوں کے علاوہ تیسرے شخص میں ملے گا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا زبردست اللہ نے طاقت، کیا زبردست معجزات دیے تھے، کیا نعمتوں سے نوازا تھا. عصے کو سمندر پہ مارے پھڑ گیا، پتھر پہ مارے 12 چشمے نکل گئے، نیچے پھینک دیا اژدہا بن رہا ہے. اتنے بڑے تورات دی گئی، کتنا زبردست معجزات ہے. لیکن جب ان کے اماں کا انتقال ہو گیا نا تو ان کو ٹھوکر لگی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ سنبھل کے رہنا. دعا کرنے والے ہاتھ اڑ گئے. اللہ ان کو سنبھلنے کی تلقین کر رہا ہے. جس کے ماں باپ ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی جب تک زندہ ہے قدر کریں. بہت اچھے سے سیوا کرو، خدمت کرو، ان کو راضی کرو. اللہ کے رسول نے کتنی زبردست حدیث بیان فرمائی. لوگ کیا کرتے، حج پہ حج کرتے، عمرہ پہ عمرہ کرتے، نمازیں پڑھتے، کرنا چاہیے، ضروری ہے. لیکن ماں باپ کو راضی کر کے، رضا ربی رضا الوالدین سخط الربی سخط الوالدین. اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراض. ماں کے آنسو بہا کے آیا، حضرت پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ ناراض ہے تیرے سے. جب تک ماں کا دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ تیری عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرے. مفتی صاحب نے ہمیں 2 لقمے کھانے کے لیے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. کھانا کھانے کے لیے بولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. A few minutes later. So guys, کھانا ہو چکا ہے. مفتی صاحب، ہمارے مفتی صاحب یو مفتی صاحب ہیں. guys یہ ہے آپ کا نام محمد زبیر صاحب، جو بنگلور سے جماعت آئی ہے ہماری مسجد میں. تو کتنے لوگ ہیں ہم لوگ 12 لوگ آئے ہیں جماعت میں. اینڈ بہت اچھے، انہوں نے بنگلور میں ہمیں انوائٹ بھی کیا ہے ماشاء اللہ. بہت جلد جائیں گے انشاءاللہ. بہت جلد فیملی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. اپنی فیملی لے کے آئیے. اگر جو یوتھ جو ہوتا ہے رائٹ، جو یوتھ لائک جیسے ابھی آفس والے ہوتے ہیں ہمارے مسلم بھائی، یا پھر جو بھی یوتھ ہے لائک 15 to 30 کی ایج کے بیچ میں، ابھی وہ لوگ اتنا زیادہ بزی ہو چکے ہیں کہ وہ نماز سے بہت زیادہ دور ہے. تو بینگ لائک آئی یوز ٹو ورک فار 18 hours. لائک جب میں 1 سال پہلے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا چھپ کے، جب میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، بٹ اسٹل آئی یوز ٹو مینیج نماز 5 times. مطلب میری فیملی کو پتا تھا، اٹس ناٹ اے ایشو. آئی یوز ٹو ورک فرام ہوم، بٹ جب میں باہر بھی جاتا تھا آئی یوز ٹو مینیج. سو اگر میں مینیج کر سکتا ہوں تو اینی ون کین مینیج رائٹ. تو ہمیں ایک یہ جو پیغام، ایک جو چھوٹی سی چیز ہے، اگر ہم نے نماز کے لیے ان کو ایک پمپ دے دیا اور ان کو ایک لائک ان کو انسپائر یا ان کو موٹیویٹ کر دیا اس چیز کے لیے، تو ہمارے لیے کتنا ثواب ہے. So good to see you. So good to talk to you.
मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अल्लाह आपको नियामत दे, अल्लाह आपको और बरकत दे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको और सारी चीज़ों से नवाजे। आज आपने हल्केदार लिए, अल्लाह आपको माशाल्लाह एम भी दिलाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पेन दिलाए। देखिए ना कहीं पे भी भाई, किधर है भाई? हाँ ऑटोमेटिक है, देखिए ना। आप बैठो। अच्छा आप बैठिए बैठिए। माशाल्लाह क्या क्लियर कैमरा है। ये कब तक लटका हुआ रहेगा? ये बस अभी निकाल देंगे। टॉप एंड मॉडल है ये। हाँ एडवेंचर है नया वाला जो न्यू आया ना। A few moments later. जब भी आपका शेड्यूल है मेरे को बताओ। इंशाल्लाह। गाइस मुफ्ती साहब को कार दिखा दी और हमारे भाई लोग को भी दिखा दी। इन्होंने पता नहीं देखी है नहीं देखी, इनको पसंद नहीं आई हमारी गाड़ी शायद परवेज भाई को। हमको पसंद आया ऐसा नहीं है भाई आपने अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारे अफान भाई, जो हमारे अफान भाई बोर हो रहे थे यहाँ पे कब से खड़े होके, कब से मेरे को घूर रहे दूर से, बोले चलना अभी कितना टाइम लगाएगा। बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। तो गाइस यहाँ से अभी हम घर जा रहे हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में जो अगर आप कुछ सीखते हैं वो दूसरों को भी बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह। अरे भाई कुछ तो बताओ, मस्त लग रहे हैं अभी तेरे को। कुछ तो बोलो। 1 मिनट 2 मिनट रिकॉर्डिंग चालू नहीं है ना? चालू है recording चालू है। नहीं चालू है। शेर मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता। शेर मार दो। सोचना पड़ेगा यार परम भाई, तुम ऐसा एकदम थोड़ी छोड़ते, हम छोड़ते नहीं ऐसे। शेर मतलब शायरी के शेर नहीं, एक बात बता रहा हूँ, शायरी का मसला ऐसा है ना कि वो बड़ी अजीब हो जाती है मेरी शायरी। लिखता हूँ मैं बाकायदा, लेकिन भाभी के लिए लिखते हैं वो शायद। अरे 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 यार मैं को उतारो गाइस अफान भाई को छोड़ देते आज, नेक्स्ट टाइम पकड़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।